today we are moving to another area of planning, that is sectorial planning. So actually when we, yes, एक बात पूछेगा हाँ सर, ये जो ना गोल्स एंड अचीवमेंट जो है ना, जो 5 ईयर प्लान में जो इतना गोल था, इतना अचीव किए है, वो वाला है ना? वो ऐसा है ना, वो क्या एम था वही है, वो उसका गोल है ना, वो सब में हम गोल दिया था ना, एम्स दिया था ना, वही है। वही। और सर एक बात और पूछना था। हाँ। हाँ। पटकाई रेंज जो है ना, म्यांमार में आता है ना, इंडिया में आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है ना, म्यांमार में आता है? क्या क्या? पटकाई रेंज। पटकाई रेंज, पटकाई पास या कुछ था। पटकाई रेंज है ना, पटकाई बम रेंज है ना, बोलता है ना। जी जी, वो जो म्यांमार में आता है ना, इंडिया में आता है? इंडिया का बॉर्डर में आता है असली में। तो दोनों में होता होगा ना? दोनों में होता है। ओके, थैंक यू सर। Okay, so in today's class we are going to discuss about the sectorial development. So sectorial development India का economic sector में, when we say about the sectorial development, there is it's a kind of approach that we are doing in planning actually. Sectorial development, regional development, these are our classification for easy planning. Planning के लिए we are classifying the area, either sector करेगा, sector कौन सी, अभी agriculture sector, education sector ऐसा sectorial करेगा, नहीं तो region करेगा, regional approach इसके for the planning. ऐसा बोलने से अभी north east region, northern region, central region, ऐसा इंडिया का बोलने से नहीं, ये तो एक state wise ऐसा region. तो दो तरीके का approach है असली में हमारे प्लानिंग के लिए सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दिस सेक्टोरियल डेवलपमेंट, बिकॉज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री दिस सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्लानिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट. सो इन आवर सिलेबस वी हैव टू एरियाज दैट वी वांट टू डिस्कस, दैट इज agriculture sector and the industrial sector. Today we are going to discuss about the agriculture sector. So agriculture sector में बोलने में we have achieved lot. पहले तो ऐसा था, the condition was we were not having enough food to sustain, उतना difficult था. लेकिन अभी क्या हुआ है, वो change होके अभी there is we have enough food, we have sufficient and surplus food safety because the agriculture sector has grown that much. It is mainly because of the sectorial development planning. Sectorial development planning, usually we are mainly contributed through 5-year plans. So what we are going to discuss here, what is this sectorial development plan? Then what is this agriculture में sectorial development कौन सी department में आता है? तीसरा 5-year plan में agriculture development का क्या किया है? So when we say about the sectorial planning, as I said, it is actually one of the approaches in planning, one of the important approaches. When we say the approaches, there is two kind of approaches in planning. Multiple criteria बोलने से multiple है, लेकिन mainly there is two kind of approaches. One is sectorial approaches, another one is the regional approach. Regional approach is based on spatial regions. Sectorial means the object or the sector that we are choosing. The sectorial planning means the formulation and implementation of the sets of schemes or programs aimed at development of various sectors. तो इसमें क्या क्या आता है? Formulation and implementation of different schemes. Planning आता है इसके ऊपर, किसके ऊपर? एक सेक्टर के ऊपर. When we say about this sector, we have multiple economic sectors like agriculture and irrigation, then manufacturing sector or industrial sector, then power, then the construction, transportation, communication, social infrastructure. So multiple sectors है.
यहाँ सेक्टर प्लानिंग में वी विल चूज वन ऑफ दिस सेक्टर, नॉट द होल. व्हेन वी से अबाउट द रीजनल प्लानिंग बोलने से होल सेक्टर को लेगा, लेकिन एक छोटा सा जगह पे. यहाँ वी विल चूज ओनली पर्टिकुलर सेक्टर ओनली, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर बोलने से only agriculture sector in the particular area. The sector in the terms of sectorial planning means the spatial planning under consideration of only one planning criteria. Only one criteria हम लोग देते हैं. Only one sector we will choose. And another characteristic of this sectorial planning is it is a long range plan, long term planning है, like हमारा 5-year plans के अंदर. तो 5 year, 10 year, 20 years ऐसा long term plans होगा हमारे लिए. And minimum area required is 15,000 acre or more. एक local self government हो, जो भी area हो, वो तो minimum होनी चाहिए 15,000 acre, and that will be a long term plan, and that will be only for particular sector. That is the sectorial planning. And what we are discussing is sectorial planning in agriculture or agriculture division. So there are two kind of planning happens in the or divisions happening in agriculture when we say about the sectorial planning. This is by NITI Aayog. One is the agriculture research and education. So उसी area पे. Second, agriculture extension and administration. So one is research and education है. Second one is actually its application on the field. Field में क्या क्या कर सकता है for the development, economic development के लिए क्या कर सकता है. तो economic development, that is actually what is happening in the field. तो इसको तो improve करने के लिए we are having research and education. Education not only dealing with the schoolings or the university ऐसा education नहीं है. It also includes educating the farmers. तो एक फर्टिलाइजर ये तो कैसे यूज करेगा, तो फार्मर्स के लिए इसका नॉलेज होनी चाहिए. तो एक सोइल है, तो वो सोइल कैसा सोइल है, इसमें कितना फर्टिलिटी है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो क्या करने से इसका प्रॉब्लम निकाल सकता है. सो ऑल दिस आर एजुकेशन, एजुकेटिंग द फार्मर्स. सो ऑल दिस कम्स अंडर द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन. So, agriculture research education include general policies and schemes relating to agriculture research and education. इसमें Indian Council of Agriculture Research and various institutions are, central institutions are there. Agriculture, Indian Council of Agriculture Research, we will usually call this ICAR. ये नाम याद रखना है, very important है ICAR. That is, ICAR deals with agriculture research. इसके साथ there are lot of central research institution is also there. Along with that, we have developed of multiple agriculture university. Most of the state having agriculture universities है. इसमें multiple disciplines है. But all this discipline is mainly aiming to develop the agriculture sector of the country. That is agriculture university. So there is in agriculture research two kind of institutions include. One is पूरा centrally concentrated होगा, and is central research institutions, then Indian Council of Agriculture Research. साथ में state में होगा agriculture university, state agriculture university, that is also actually centrally sponsored होगा this agriculture universities. Most of the state is having this agriculture universities. Then the second one is agriculture extension and administration. So this is actually field level है. Field में research and innovation, education ये सब हो गया first part में. Secondly field में ये तो implement करना है. इसके लिए क्या क्या चाहिए? Mainly administration चाहिए. Agriculture administration at different level. पंचायत लेवल में, विलेज लेवल में, तालुक लेवल में, ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में, ये एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, कैसे इसको मैनेज करेगा. दैट इज द फर्स्ट वन.
Second one, transfer of technology to the field. तो agriculture research institution, they will make multiple technologies, multiple missionaries, ये सब बनाता है. इसको we want to implement that on the field, ये कैसे करेगा? तो इसका planning चाहिए. तो अच्छी तरह करने से ही there will be development in the agriculture. टेक्नोलॉजी है, लेकिन फार्मर्स के पास कुछ टाइम तो पैसा नहीं होगा, ये भी मैनेज करना है, कैसे रहेगा? तो सब्सिडी देना होगा. फार्मर्स के लिए इसके ऊपर नॉलेज नहीं होगा, ये भी करना होगा. ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इट्स अ बिग टास्क. देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्सटेंशन मिशनरी. सो रिसर्च किया है, कुछ तो इनोवेट किया है, ये फील्ड में ये मिशनरी जो बनाया है, इसमें ये तो फील्ड में अप्लाई करना है, इसका एक्सटेंशन करना है. That is also comes under the scope of sectoral planning in agriculture. Then coordination and linkage between extension, research, input agencies and local organizations. इसका coordination. तो extension research किया है, इसको तो extend करके कैसे लेके आना है, ये input कैसे अभी कुछ तो सब्सिडी करनी चाहिए, नहीं तो कुछ इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक करने चाहिए, ये सब करना है. इसके लिए भी प्लानिंग का जरूरी है. देन एग्रीकल्चरल इनपुट्स. एग्रीकल्चर इनपुट्स इसका मतलब है बहुत कुछ चीज है, क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मिशनरीज, ऑल दीज आर इनपुट. लेबर, कैपिटल, ये सब देना है, अच्छा लैंड देना है. सो ऑल दिस कम्स अंडर एग्रीकल्चर इनपुट. ये सबको तो प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छा सा प्लानिंग होनी चाहिए. देन soil and water conservation include land reclamation. लैंड, कुछ लैंड तो खराब होता है ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने पे, तो इसको तो रिक्लेम करके जाए, नहीं तो इसका तो ओवर यूज करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, ये सब निकाल के. दूसरा है सोइल एंड वाटर कंजर्व करना है, बिकॉज वी आर यूजिंग मल्टीपल केमिकल्स इन द नेम ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन द नेम ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये सब अप्लाई करता है. सो सोइल का अपना क्वालिटी जाता है, जो नेचुरल क्वालिटी था, इसको भी प्रिजर्व करना है. इसके लिए भी वी नीड प्लानिंग. देन फार्मिंग, दैट मेजर फार्मिंग इज फूड ग्रेन्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप, ये सब फार्मिंग के लिए इट्स डिपेंड्स ऑन रेन है. तो इसका तो रेन होने से क्या करेगा, रेन ज्यादा होने से क्या करेगा, रेन कम होने से क्या करेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करेगा, ये सब comes under the scope of this sectoral planning. Then development of horticulture, vegetables, fruits, ये सब चीज का डेवलपमेंट, ये तो कैसे करना है. Then agriculture statistics. As we know, most of the agriculture इसका डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ एरिया में प्रॉब्लम हुआ है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हुआ है, स्टोरेज में प्रॉब्लम हुआ है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, ये कैसे समझ में आएगा? इट इज हैविंग स्टैटिस्टिक्स. कुछ तो कैलकुलेशंस, कुछ तो अमाउंट क्वांटिफाई करके वी हैव द वैल्यू. क्रॉप प्रोडक्शन इट इज 756 मिलियन तो बना दिया है, इस एनुअली वी हैव मेड दैट. ये कैसे बोलेगा? वी हैव द एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स. ये कैसे बनाएगा, कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे ये तो डेटा को मैनेज करेगा? All this comes under this agriculture statistics. Agriculture export. So this is also kind of marketing. तो प्रोडक्शन के लिए इतना सब दिया है, तो अभी क्या करेगा? मार्केट को कैसे करेगा? एंड वन ऑफ द मेन थिंग इज द एग्रीकल्चर चीज को एक्सपोर्ट करना है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को. देन ओनली वी विल गेट इकोनॉमी फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो इसको कैसे प्लान करेगा? दैट इज आल्सो a kind of sectoral planning. Then small farming agri business consortium. ये तो एग्रीकल्चर छोटा छोटा हम बोला है, बहुत कुछ प्रॉब्लम तो कर सकते हैं ऐसा सोसाइटी बनाने से, ऐसा कुछ कंसोर्शियम बनाने से. तो क्या करेगा? एक तो है प्रोडक्शन में इसी करेगा, दूसरा है बिजनेस मैनेज करने के लिए. तो ये सब कैसे करना है, कैसे इसको तो कंसोलिडेट करना है, कैसे एजुकेट करना है, ये पूरा प्लान तो सेक्टोरल प्लान एग्रीकल्चर डिविजन का होता है. एंड फाइनली द एनिमल हस्बेंड्री. इसके अंदर कैटल बफलो ब्रीडिंग ये कैसे करें, क्रॉस ब्रीडिंग का, फिर तो मल्टीपल चीज है एनिमल हस्बेंड्री. तो दैट्स रिलेटिंग टू
वो एनिमल्स का नहीं तो बर्ड्स का जो फार्म में करता है, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री है। तो इसका तो ब्रीडिंग कैसे करेगा, क्रॉस ब्रीडिंग कैसे करेगा, फीडर एंड फूड क्रॉप्स, ये सब कैसे कैसे इसको तो करेगा, प्रोडक्शन कैसे ज्यादा करेगा, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स ये तो कैसे ज्यादा करेगा, लाइफ स्टॉक्स का प्रोडक्शन कैसे ज्यादा करेगा, ये एनिमल्स का वेलफेयर के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए, फार्मर्स को सेफ गार्ड करने के लिए, ये सब चीज इसके अंदर आ जाएगा। देन डेयरी एंड मिल्क सप्लाई, तो डेयरी एंड मिल्क सप्लाई इसमें क्या होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करेगा। दैट इज आल्सो एग्रीकल्चर बोलने से दिस नॉट ओनली इंक्लूड द क्रॉपिंग, इट आल्सो इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री भी इसके साथ आएगा जो प्राइमरी काम में आता है। सो डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट, इसका तो कैसे डेयरी डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड दैट वी नो व्हाइट रेवोल्यूशन के टाइम में, तो ये सब कैसे करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड डेयरी, तो जब वी स्टडीड अबाउट द व्हाइट रेवोल्यूशन, हाँ तो उसी टाइम में हम बोला है, तो क्या किया है, रूरल एरिया का जो प्रोडक्शन है उसको तो मार्केट कहाँ बनाया है, अर्बन एरिया, तो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ मार्केट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ये याद रखना है। तो ऐसा वाला चीज भी वी वांट टू प्लान, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द स्कोप ऑफ agriculture sector planning। then fisheries, that is also primary activity है, so that is also comes under the scope, like policies and objectives during planning, then target of fishing production and program, strategy for fish production, marine fisheries, inland fisheries, training and extension, ये सब आता है कैसे प्लान करेगा। अभी ब्रीडिंग टाइम है तो उसी टाइम में ट्रोलिंग आएगा, उधर ज्यादा फिशिंग नहीं कर पाएगा, ये सब को कैसे है तो प्लान करना है, कौन सी सीजन में ऐसा करना है, कौन सी सीजन में अलो करना है फिशिंग के लिए, कौन सी सीजन रेस्ट्रिक्ट करना है, ये सब प्लानिंग के स्कोप में आ जाएगा। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसेस, इसका तो बनाना है, मैनेज करना है, डेवलप करना है, मार्केट में मार्केट को डेवलप करना है, ये बहुत चीज इसके अंदर आ जाएगा, लाइक regulation, management and development of market, then quality control, then marketing, research, surveys and studies। लास्ट टाइम मार्केट में कम हो गया है, क्यों कम हो गया है, मार्केट में ज्यादा हो गया, हाउ इट हैपेंड, तो क्या इन्फ्लुएंस किया है, कैसे इन्फ्लुएंस किया है, ये सबको पढ़ना है, दैट इज रिसर्च, मार्केट रिसर्च करेगा। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्सटेंशन, देन रूरल गोडाउन्स, ये है रूरल एरिया में भी गोडाउन्स करेगा। आई सेड मेन प्रॉब्लम फेसिंग बाय द फार्मर्स इज द मिडिल मैन आएगा, क्योंकि फार्मर्स के लिए गोडाउन्स, ये स्टोर, अपना प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, सो दे वांट टू सेल इट एज अर्ली एज पॉसिबल, एक दिन में कर सकते हो उतना अच्छा है, तो क्या करेगा मिडिल मैन, एक्सप्लॉइट द मिडिल मैन, बोलेगा हाँ आज हम लेगा लेकिन इतना पैसा ही देगा, कुछ नहीं कर पाएगा बिकॉज दे डोंट हैव द स्टोरेज फैसिलिटीज। तो रूरल एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, फॉर दैट रूरल गोडाउन्स बनाना है, रूरल स्टोरेज फैसिलिटीज देना है, देन फार्मर्स कैन स्टोर देयर प्रोडक्ट्स, बाद में बेचने से भी ओके, दे कैन मैनेज इट। तो ये सब आएगा सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लानिंग, एग्रीकल्चर का डिविजन में ये सब चीज आता है। नाउ then the corporation, agriculture credit and crop insurance, this is another part actually, it consists of abhi just like I said there was a ऐसा एक फार्म है, तो एक बड़ा फार्म है, तो फार्म में बर्थ बड़ा छोटा छोटा फार्म में बर्थ होगा, तो अभी एक यहाँ इस एरिया पे इरिगेट करना है, तो क्या करेगा, इसको तो खुद से अपना खर्चा दे के पावर से पानी लेके डालना पड़ता है, नहीं ये तो इसमें सो करना है, हार्वेस्ट करना है, ये सब चीज के लिए इंडिविजुअली फार्मर्स को पैसा देना पड़ता है, तो ऐसा सबको देना पड़ता है। लेकिन इफ दे आर मेकिंग ए कॉर्पोरेशन और बनाता है सोसाइटी,
ये सोसाइटी बनाने से क्या कर सकता है, दे कैन डू इट टुगेदर, तो पैसा कम होता है। एक दिन में इतना करेगा, सब मिला के इतना पैसा देता है, तो ऐसा करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी ब्रिंग डाउन, तो दैट इज कोऑपरेशन है बीच में। तो कोऑपरेशन ऐसा नहीं है अभी इसके लिए नहीं है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रेडिट मिलने के लिए, मार्केट करने के लिए, सब जगहों में दिस कॉर्पोरेशन कैन बी इनपुट। देन एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम एंड क्रॉप इंश्योरेंस, तो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर क्रेडिट, पहले ये सीड खरीदने के लिए फार्मर्स के पास पैसा नहीं होता, ये कौन देगा? अभी किसी के पास से पैसा, इंडिविजुअल आदमी से पैसा देने से, मनी लेंडर से पैसा देने से, the farmers will have to give too much of money। तो ये कैसे करेगा? इसके लिए तो एग्रीकल्चर बैंकिंग, नहीं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो लोग देना है, कितना परसेंटेज इंटरेस्ट में देना है, ये सब इसका प्लान क्या है। देन क्रॉप इंश्योरेंस, आज वी आर डिपेंडिंग ऑन मानसून रेनफॉल, एग्रीकल्चर हमारे इधर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, देयर इज चांस ऑफ क्रॉप फेलियर्स, लॉट ऑफ क्रॉप फेलियर्स के लिए बहुत चांस है। तो क्या, फॉर प्रोटेक्टिंग द फार्मर्स देयर शुड बी क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप खराब होने से भी मिनिमम पैसा फार्मर्स को वापस मिलेगा। तो इट्स कंसिस्ट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम, तो पैसा वो लोग देगा, देन कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग, देन कॉर्पोरेटिव प्रोसेसिंग, कॉर्पोरेटिव स्टोरेज, ये भी गोडाउन जैसा बनाता है, देन कॉर्पोरेटिव कस्टमर कॉर्पोरेटिव, देन कॉर्पोरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, cooperative for weaker section, labor cooperative and transport cooperatives, agriculture credit through various institution sources। तो ये कहाँ में cooperatives में आएगा, that is commercial बैंकिंग होगा, रूरल बैंकिंग होगा, क्रॉप इंश्योरेंस होगा, ये सब। तो ऐसा है, इकोनॉमिक को कंट्रोल करना है, इकोनॉमी, क्योंकि पहले जैसा नहीं है, वो कैपिटलिस्ट ये जो नहीं करता है, छोटा छोटा फार्मेस ही करता है, उन लोगों को पैसा चाहिए इनिशियल देने के लिए, उसके पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, तो दे नीड क्रेडिट, इट शुड बी गिवन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नहीं ये तो गवर्नमेंट रूरल और एग्रीकल्चर बैंक्स देता है विथ मिनिमम इंटरेस्ट रेट, देन ओनली फार्मर्स गेट प्रॉफिट। तो दैट्स अबाउट एग्रीकल्चर डिविजन। तो इतना सा एक्टिविटीज सेक्टोरल प्लानिंग में इतना सा आता है, बहुत कुछ आता है, डोंट थिंक दैट इट इज अ स्मॉलर एरिया। जैसे प्रोडक्शन से शुरू होकर फार्म के अंदर जो जो करता है वो होके, देन मार्केटिंग में क्या क्या, स्टोरेज में क्या क्या कर सकता है, मार्केटिंग में क्या क्या करता है, और इसके लिए तो पैसा कैसे दे सकता है, इसका इंश्योरेंस कैसे दे सकता है, एंड इसका रिसर्च एजुकेशन ये सब कैसे कर सकता है। ऑल दिस कम्स अंडर द सेक्टोरियल प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ वी कैन लुक द मेन एरिया, दैट इज agriculture under 5-year plans। So we have 12 5-year plan है, we have gone through it yesterday, तो कर दिया है, we have started from 1951 to 2017 तक, we have multiple 5-year plans। ये 5-year plans के अंदर we have said इस टाइम तो फर्स्ट 5-year plan, third 5-year plan, fourth 5-year plan, all this given importance to agriculture, ये कैसे दिया है, क्यों दिया है, एंड हाउ मच दे हैव प्रोवाइडेड, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो एग्रीकल्चर अंडर फर्स्ट 5-year प्लान, सो फर्स्ट 5-year प्लान मेनली गिवन प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर सेक्टर। Almost 31% of the allotted money is given to agriculture sector। इतना सा पैसा, तो पैसा don't think that it's a big amount, because this is the initial stage of India post independent India। तो उसी टाइम में they have given 31%, क्योंकि उसी टाइम पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। तो प्लानिंग कमीशन ने, वी नो प्लानिंग कमीशन के बारे में भी वी हैव डिस्कस करते, तो रिमूविंग पॉवर्टी and providing employment opportunity was one of their primary aim। तो इसमें क्या किया है, पॉवर्टी निकालने के लिए
क्रॉप्स क्रॉप्स नहीं है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा करनी चाहिए था. So they have given priority to agriculture sector in the first 5-year plan. Almost 31% of their total amount has been given to agriculture sector. Nearly 12 lakh acres of land were reclaimed कर दिया है, brought under farming के लिए. And 14 million acres of land were brought under irrigation. उतना ज्यादा irrigation के लिए भी, irrigation that we know for providing water to agriculture, तो उतना ज्यादा acres brought under irrigation. So this happened during the first 5-year plan. And also they adopted the Japanese method of rice cultivation. तो terrace farming के इसके अंदर आ जाए, तो intensive cropping ये सब इसके अंदर आ जाए. This is the initial stage of our agriculture development. The price index of agriculture commodities came down to 92.8 इसी time में. Thus the increase in the farming output during the first 5-year plan helped to end the inflation. तो क्या हो गया, पहले agriculture commodities के लिए बहुत ज्यादा पैसा था. Anyway, the government has able to reduce that. So it is the first 5-year plan for agriculture, it is a successful one. Then the second 5-year plan. Second 5-year plan, we know that उतना सा पैसा नहीं दिया है. It is mostly given importance to industrial sector है. तो devoted relatively तो कम है. Almost 20% of the public layout is given to agriculture. So 20% ही दिया था. उसी टाइम में उतना substantial development तो नहीं हुआ है. फिर भी 21 million acres of additional land to be brought under irrigation वो करने के लिए कर पाया है. Then actual achievement तो उतना सा 16 million acres तो लेके आने के लिए किया था, प्लान किया था 21 million, लेकिन 16 million acres तो लेके आया है अंडर इरिगेशन. लेकिन क्या हो गया, सेकंड 5-year प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ, स्पेशली द राइस प्राइस वो तो कम करने के लिए it has not done like that. So it was in the name of agriculture, it is not that much a successful plan under second 5-year. Then third 5-year plan यहाँ किया है predominant emphasis to agriculture. Third we said yesterday also, third इसमें भी सबसे importance दिया है agriculture के. One of the major objective of the plan was to achieve self-sufficiency in food grains and to increase agriculture production for exports. So first 5-year plan 51 to 56, then 56 to 61, then 61 to 66 हो गया. This is third 5-year plan है. इसी time में we know that is a time where we have faced India, China, in Sino-Tibetan war and Indo-Pakistan war इसी time में था. So there were laws. तो बहुत लॉस हुआ था. कुछ पैसा तो डिफेंस के लिए भी चेंज करना पड़ता. Allotted amount is only 10% of the total public, क्योंकि हमारा तो दूसरा काम के लिए भी पैसा देना पड़ा, especially for defense. So third 5-year plan for agriculture, it is actually a failure, ऐसा ही बोल सकता है. Then the fourth 5-year plan. तो third 5-year plan में we have having problems. उसके बाद क्या हुआ था, annual plan ऐसा कुछ फेल हो गया, तो प्लान 5-year प्लान बीच में खत्म हो गया था. 66 to 69 तक तो नहीं हुआ था. Then we have started again the fourth 5-year plan. उसी टाइम में थर्ड 5-year प्लान का बिटर इफेक्ट हमारे पास था. तो प्लानिंग कमीशन हैज गिवन प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर. अगेन एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया था. कैसे दिया था, जो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में भी प्रायोरिटी दिया है, लेकिन जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को ज्यादा पैसा दिया है.
लाइक फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चर मिशनरी बनाने के लिए, उसी एरिया को भी ज्यादा पैसे देके दे हैव क्रॉस्ड what happened during the third 5-year plan. So it is actually a successful plan. For 5-year plan also is a successful plan. Then उसका तो दो ऑब्जेक्टिव था for 5-year plan में mainly to provide the conditions necessary for sustained increase of 5% per annum over the next decade. तो 10 years के लिए sustainable increase 5% का annual increase agriculture sector में होनी चाहिए. To enable as a large sector of rural population as possible. Large sector of rural population को enable करना है. कैसे? Including the small farmers, the farmer in dry areas and agricultural laborers to participate in development and share its benefit. ऐसे. तो rural population को enable करना है. Agriculture, especially by giving importance to agriculture. यहाँ almost 3,840 crores of agriculture, that is about 24% तो पैसा गवर्नमेंट दिया है. तो ऑलमोस्ट फर्स्ट में 30 दिया था, तो ऑलमोस्ट सेम है, 24% यहाँ भी दिया है. तो फर्स्ट 5-year plan postulated and growth of 5% for the agriculture as a whole. तो they have achieved. उसका तो 5% annual increment increase तो वो लोग चाहता था. They have able to achieve that during the fourth 5-year plan. So fourth 5-year plan is also a successful one. Was also a successful one. Then the fifth 5-year plan. Fifth 5-year plan में उतना ज़्यादा नहीं है. तो इसमें almost 7,411 crores has spent to agriculture and irrigation. That is about 20% of the total outlay. तो 20% तो पैसा दिया है. इसके साथ क्या किया है? प्राइवेट सेक्टर को भी इसके अंदर लेके आया है. तो दे हैव गिवन 2,950 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट किया है. सो द मेन एम ऑफ द फिफ्थ 5-year प्लान टू ऑब्जेक्टिव है फूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस. इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आया. देन द सिक्स्थ 5-year प्लान 1980 to 85. यहाँ क्या है? एक्सट्रीमली डिफरेंट सर्कमस्टेंस द ईयर ऑफ 1979 to 80. इट्स द वर्स्ट ड्रॉट. तो उसी टाइम में वी हैव द ड्रॉट था. एंड आल्सो वी हैव उसी टाइम में रोलिंग प्लान था 3 साल का. 78 में खत्म हो गया. 78, 79, 80 तक रोलिंग प्लान लेके आया था. तो क्या हो गया? उसके साथ ड्रॉट भी था. तो एग्रीकल्चर हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड था. तो ज्यादा इसमें देना पड़ा. Among the different crops, only wheat has keeping pace with the plan target. Okay, target और प्लान के लिए wheat ही अचीव किया, पर दो बाकी सब इसको तो उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है. ओनली on wheat के लिए. And plan has set target for additional irrigation of 5.6 million hectares. And minor, that is for major and medium, and 8 million hectares for minor schemes से irrigation डेवलप करने के लिए भी कोशिश किया था उसी टाइम में. एंड अनदर इम्पोर्टेंट चीज है इसी टाइम में हाई यील्ड वेराइटीज. सो वी नो दिस इज द टाइम 1980s. दैट इज टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम था. तो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का भी यूज उसी टाइम में ज्यादा कर दिया है. Along with that, they have improved market facilities. तो मार्केट को भी रेगुलेट करने के लिए इन लोगों को they have able to do that during the sixth 5-year plan. Another important landmark in the history of agriculture is the setting up of National Bank of Agriculture and Rural Development, NABARD. NABARD सेट किया है 1982 में. ये डेट याद रखना है. नाबार्ड क्या है? एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है, नेशनल. So that is also been established during the 6th 5-year plan. Then 7th 5-year plan. तो इसमें
ऑलमोस्ट 10,524 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्चा किया है, along with not only for agriculture sector, it also included forestry and wildlife also. Together they have, so this is actual primary sector में आता है, इसलिए तो almost 10,000 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्चा किया है. Then the average annual production of the food grain during the period was 1,155 million tons. उतना ज्यादा हो गया है. And wheat production also increased to 2,244 kilogram per hectare. तो इसमें ज्यादा प्रोडक्शन, wheat production भी increase हुआ है. Then distribution of agriculture credit system through cooperative, commercial and rural banks भी increase किया है उसी टाइम में. So रूरल क्रेडिट सिस्टम को पहले ग्रीन हाउस का ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट है, ये भी क्रेडिट सिस्टम ये सब देने के लिए भी दे हैव एबल टू कंट्रीब्यूट. देन लाइव हाउस सेक्टर में भी दे हैव शोन एन इंक्रीज ड्यूरिंग दिस टाइम. सो दैट इज द 7th 5-year plan. देन 8th 5-year plan. 8th 5-year plan वी नो 92 to 97 है. तो दिस इज टाइम ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया है इसी टाइम में. सो 8th 5-year plan envisages almost 22,464 crore on agriculture development, self-sufficiency in food grains and development and diversification of agriculture to generate export surplus are the main objectives of this plan. यहाँ क्या हो गया है, यहाँ भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है बट नॉट लाइक एज एक्सपेक्टेड, इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा. तो इसका मतलब क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर दूसरे सेक्टर में तो कर पाया है, लेकिन ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज नॉट दैट मच रिफ्लेक्टेड ड्यूरिंग 1992 1997. So 1994 production of the food grain has increased to 191 million tons. तो ये ऐसा नहीं है, कम जो एक्सपेक्ट किया था उतना ज्यादा आउटपुट नहीं मिला है. दैट इज अ मेजर एंड आल्सो गिवन एम्फोसिस टू एग्रो प्रोसेसिंग एंड एग्रो इंडस्ट्रीज को भी इसी टाइम में एनकरेज किया है. देन 10th plan. 10th plan is between 2002 to 2007 इसी टाइम में हुआ. 10th 5-year plan is between 2002 to 2007. तो टोटल प्रोडक्शन फूड ग्रेन इंक्रीज हुआ है 2012 million tons in 2003 to 2004 and has been increased to 2000 has been थोड़ा कम हो गया है 2006 and 7 में, दैट इज 208.3 million tons हो गया, थोड़ा कम हो गया है. सो इसका मतलब क्या है, बीच में ज्यादा हो है फिर थोड़ा कम हो गया है. इन बिटवीन यू कैन सी द परसेंटेज ग्रोथ आल्सो कम लेस, -7.2% तो इसमें 10th 5-year plan में हो गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ज्यादा कर दिया. बीच में 10% इंक्रीज हुआ है 2003-4 में, 6% इंक्रीज हुआ है 2005-6 में. So expected as I say, it is also comparatively less. So it has shown a mixed performance. That means successful भी नहीं है लेकिन failure भी नहीं है. On an average performance दिया है 10th 5-year plan में agriculture sector में. Then agriculture under 11th 5-year plan में ऐसा था, they have given priority to doubling the rate of growth of irrigated area. Then improving water management, rainwater harvesting and watershed development, then reclaiming degraded land and focusing on soil quality, then diversify into high value outputs like fruits, vegetables, yes, not only for food crops, other crops also given priority during this time. And along with that, they have given importance to animal husbandry and fishing. And focusing on land reforms also been done during the 11th 5-year plan. And finally, in the 12th 5-year plan, the growth target for agriculture sector has been set for 4% था.
and for 2% for food grains and non food grains के लिए ऐसा दिया था. That means food grains के लिए 2% and non food grains के लिए 5% दिया था. And overall we have achieved almost only 1.6% growth ही achieve कर पाया है 12th 5-year plan में. So 12th 5-year plan 2012 to 2017, that is the last 5-year plan that we are having. So these are the major planning that we have done during the 5-year plans. इसमें agriculture का ये तो actually reality में ये तो this is not an important region. Sectorial development plan उतना ज़्यादा important नहीं है, लेकिन 5-year plan ये important चीज़ है, वो याद रखना है. That's it. Tomorrow we can discuss about the sectoral development planning in industrial sector. Okay. Okay. Okay.